Hello, a very good morning to students. Uh, Students, today we are going to discuss on Unit 4, that is a concrete mix design. Okay, here we are going to discuss over the mix design concept of concrete. Okay, now what is mix design concept? It is nothing but the designing on designing the concrete mix according to the durability, workability, strength, and so many other properties. Okay, so let's start with it. यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं in this particular unit we are going to discuss over the mix design for compressive strength mix design for compressive strength by IS method, road node method, British method. ठीक है, mix design for flexural strength also. Now what is concrete mix design? ये होता क्या है, उसकी definition हम पढ़ते हैं. Concrete mix design may be defined as the part of selecting suitable ingredient of concrete and determining the relative proportion with the object of producing concrete of certain minimum strength and durability as economical as possible. Concrete mix design अगर हम साफ शब्दों में कहे तो that is selection of ingredients of concrete wisely. ठीक है, selection of ingredients of concrete suitably or wisely and determining their relative proportion, और उनका proportion कितना रखना है किस concept के हिसाब से, with the object of producing concrete of certain minimum strength and durability as economical and possible. So considering the economy, considering the durability, considering the strength, हम ingredients को select करेंगे और उनको proportion करेंगे. ठीक है, यानी कि उनका measurement रखेंगे. ठीक है, that is called as a concrete mix. I hope it is clear to you. Concrete mix क्या होता है कि material suitably select करना and उनका proportion suitably maintain भी करना for getting अच्छी strength, durability and economy as well. Okay, so that is about the concrete mix design. Objectives of concrete mix design. So concrete mix design का purpose है to ensure the most optimum proportion of the constituent material. The purpose of concrete mix is to ensure the most optimum proportion of constituent material so that हमारे स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके जो हम बिल्ड करने वाले हैं. ठीक है, मिक्स डिज़ाइन का सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, क्या करना है आपको, मिक्स क्रिएट करना है प्रपोर्शन सूटेबल लेकर ऑफ योर कंस्टिट्यूएंट मटेरियल्स ताकि स्ट्रक्चर को उसकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली या एडिक्वेटली मिल सके. दैट इज कॉल्ड एज अ मिक्स डिज़ाइन. नाउ व्हाट आर दोज प्रॉपर्टीज जो स्ट्रक्चर्स की है जो हमें चाहिए. पहली चीज, उस कंक्रीट में वर्केबिलिटी होनी चाहिए. प्लास्टिक स्टेज में उस कंक्रीट की वर्केबिलिटी होनी चाहिए. जो भी मैं मटेरियल यूज कर रहा हूँ कंक्रीट बनाने के लिए, वो मटेरियल का प्रोपोर्शन ऐसा होना चाहिए कि जब मैं मिक्स कर रहा हूँ कंक्रीट को गीले इसमें प्लास्टिक स्टेज में, तो इट शुड हैव अ डिजायर्ड वर्केबिलिटी एट दैट पॉइंट. ओके, so the objectives which we require for the healthy mix design is जो भी हम proportion select करें materials के, तो proportion इस तरीके से होना चाहिए mix का कि हमें in plastic stage desired workability मिलनी चाहिए. ठीक है, second, हमें desired minimum strength चाहिए at the hardened stage. हार्ड जब हो जाए तो हमें एक मिनिमम स्ट्रेंथ जो है वो डिजायर्ड मिलनी चाहिए. डिजायर्ड मिनिमम स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल M20 ग्रेड कंक्रीट यूज कर रहा हूँ मैं, तो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर इतनी मुझे स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए. ड्यूरेबिलिटी अंडर एनी एनवायरमेंट कंडीशन मुझे मिलनी चाहिए और इकोनॉमी भी मिलनी चाहिए. ठीक है, हम मटेरियल ऐसा सिलेक्ट करेंगे
कि हमें मटेरियल और उसका प्रोपोर्शन हमें ऐसा ऐसा सिलेक्ट करना है कि हमें वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी के साथ साथ इकोनॉमी भी हासिल हो। ठीक है। The points which we require to consider while designing the concrete mix are, so किसी भी concrete mix को अगर डिजाइन करना है, concrete mix को डिजाइन करना है तो कौन से फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं? So the factors to be considered are cost. कॉस्ट बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा महंगा कंक्रीट बन रहा हो, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा और हर कोई उस कंक्रीट को यूज़ नहीं कर पाएगा, उस कंक्रीट मिक्स को। स्पेसिफिकेशन उसके करेक्ट होने चाहिए, जैसे कि वाटर सीमेंट रेशियो हो गया हो, वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें। ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, दीज आर कॉल्ड एज स्पेसिफिकेशन। थर्ड इज वर्केबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। हमें हर एक पॉइंट्स को क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। कॉस्ट, अब कॉस्ट क्या चीज़ का आता है? द कॉस्ट ऑफ कंक्रीट इज मेड अप ऑफ, कंक्रीट का कॉस्ट किस किस चीज़ को इंक्लूड करता है? मटेरियल के कॉस्ट को, इक्विपमेंट के कॉस्ट को, लेबर के कॉस्ट को। ये तीनों को मिला के हमारा कंक्रीट बनता है। बिना लेबर के कंक्रीट नहीं बनता है, इक्विपमेंट के बिना नहीं बनता है, मटेरियल के बिना नहीं बनता है। ठीक है। अब मटेरियल पर बात करें तो इट हैज बीन सीन दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल का टोटल कॉस्ट अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट सीमेंट इज सेवरल टाइम्स कॉस्टलियर देन एग्रीगेट। एग्रीगेट से बात करें सीमेंट का कंपैरिजन, तो वी फाइंड दैट सीमेंट इज सेवरल टाइम्स कॉस्टलियर देन एन एग्रीगेट। सो मोस्टली क्या किया जाता है कि मिक्स डिजाइन में हम लीन मिक्स बनाने के ट्राई करते हैं, जितना हो सके उतना। लीन मिक्स मतलब लीन मिक्स इज और द लीन कंक्रीट इज अ मिक्स वेयर द अमाउंट ऑफ सीमेंट इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन द स्ट्राटा। ठीक है। जितना ज्यादा हायर सीमेंट रेशियो, हायर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो रखोगे, लीन कंक्रीट बनेगा। समझ में आया आपको? एग्रीगेट का कंटेंट ज्यादा, सीमेंट का कंटेंट कम, मतलब हायर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो। जितना ज्यादा बनेगा, लीनर कंक्रीट बनेगा उस हिसाब से। लीन कंक्रीट इज नॉट रिच कंक्रीट। अगर अदर वर्ड्स में बात करें तो रेशियो ऑफ सीमेंट टू वाटर एंड ऑफ कोर्स टू एग्रीगेट। ठीक है। सीमेंट टू वाटर एंड टू एग्रीगेट शुड बी लो। यानी सीमेंट का रेशियो अगर वाटर से देखें, सीमेंट टू वाटर रेशियो और सीमेंट टू एग्रीगेट रेशियो कम होना चाहिए। कहने का मतलब सीमेंट की वैल्यू, न्यूमरेटर की वैल्यू कम, डिनोमिनेटर वाटर और डिनोमिनेटर एग्रीगेट, इसकी वैल्यू ज्यादा, तो फिर उनका रेशियो क्या आएगा? लो आएगा। तो अगेन हम बात करते हैं क्या है लीन कंक्रीट। लीन कंक्रीट इज अ मिक्स जहां पर अमाउंट ऑफ कंक्रीट, अमाउंट ऑफ सीमेंट इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ लिक्विड प्रेजेंट इन द स्ट्राटा। ठीक है। हायर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो मींस लीनर द कंक्रीट। ठीक है। हायर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो में क्या होगा? एग्रीगेट की वैल्यू ज्यादा रहेगी न्यूमरेटर की, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम रहेगी, तभी रेशियो जो है हायर आएगा। और इस ऐसे कंक्रीट को हम लीन कंक्रीट बोलते हैं। लीन कंक्रीट इज नॉट अ रिच कंक्रीट, लीन कंक्रीट इज नॉट अ रिच कंक्रीट, लेकिन आप उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन कर सकते हो बाय डूइंग सम और बाय टेकिंग सम पॉसिबल स्टेप्स। सो व्हाइल डिजाइनिंग अ कंक्रीट मिक्स, बहुत सारी जगह पर यही होता है कि हम लीन कंक्रीट बनाने की कोशिश करते हैं ताकि इकोनॉमी मेंटेन हो। तो इसी वजह से हमें ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं ताकि हम सीमेंट कंटेंट रिड्यूस कर सके विदाउट सैक्रिफाइसिंग द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट सच एज स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। अब सेकंड कंसिडरेशन या फैक्टर मिक्स डिजाइन का सेकंड फैक्टर जिस पर मिक्स डिजाइन डिपेंड करता है, दैट इज योर स्पेसिफिकेशन। अब स्पेसिफिकेशन क्या क्या इंक्लूड करता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। हमें मिक्स डिजाइन हम जैसा भी कर रहे हैं, जितना भी प्रोपोर्शन यूज कर रहे हैं, जितना भी जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं, हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए भाई। वाटर सीमेंट रेशियो हमारा मेंटेन रहना चाहिए। जो हमारा डिजायर्ड वाटर सीमेंट रेशियो हमने पढ़ा है कि कितना रहता है, दैट शुड बी मेंटेन, दैट इज 0.4 to 0.6। ठीक है।
सीमेंट कंटेंट, सीमेंट कंटेंट एटलीस्ट इतना रहना चाहिए, मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट लिखा है, मैक्सिमम इसलिए ताकि श्रिंकेज क्रैक को अवॉइड करने के लिए जितना सीमेंट लगता है उतना आपका एटलीस्ट सीमेंट उसमें अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लीन कंक्रीट बना रहे हो तो सीमेंट का कंटेंट बहुत ज़्यादा मिनिमम कर दिया और उसमें क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना तो भी सीमेंट रहना चाहिए कि श्रिंकेज क्रैक्स वगैरह ये सब ना हो। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो ज़्यादा रखना है, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो ज़्यादा रखना है, ये इसके ऊपर हमारी बात हो चुकी है। और डेंसिटी ऑफ कंक्रीट अच्छा होना चाहिए अगर हम मास और ह्यूज कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं तो कंक्रीट की डेंसिटी अच्छी होनी चाहिए, ये सब स्पेसिफिकेशंस में आता है। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी मेंटेन करने चल रहे हो आप तो आपने मटेरियल सिलेक्ट कर लिया और वो मटेरियल से स्ट्रेंथ मिल सकती है सिर्फ बिल्डिंग की और आपने वो मटेरियल डैम के लिए यूज कर लिया तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट वैरी कर रही है। आपने डेंसिटी ऑफ कंक्रीट कैसे प्रिपेयर किया फॉर बिल्डिंग स्ट्रक्चर और आपने यूज कहाँ कर लिया, डैम में, तो it will not going to work as it is not going to give you the appropriate strength. So density of concrete आपको मेंटेन करना पड़ेगा as per the purpose of work, ठीक है। डैम है तो डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, बिल्डिंग है तो डेंसिटी कम, और वही कुछ और फ्लोर वर्क है तो और डेंसिटी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसिडरेशन वर्केबिलिटी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भाई आप एग्रीगेट सीमेंट, वाटर, एग्रीगेट एंड सैंड, इसका जो प्रोपोर्शन ले रहे हो ये ऐसा रहना चाहिए कि एटलीस्ट वर्केबिलिटी तो आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपरली आप मटेरियल को मिक्स कर सको, प्रॉपरली मटेरियल को आप कैरी कर सको, ट्रांसपोर्ट कर सको और प्लेस कर सको, वर्केबिलिटी हमें मिलनी चाहिए इन सब काम के लिए। तो आपका जो मिक्स बनेगा वो मिक्स में इतनी वर्केबिलिटी एटलीस्ट चाहिए, यानी कि उसके प्रोपोर्शन उस तरीके से मेंटेन्ड होने चाहिए। दैट इज अबाउट द वर्केबिलिटी। लेट्स मूव अहेड। देखिए वर्केबिलिटी बता रहे हैं कि मटेरियल जब उसको प्लेस कर रहे हैं तो मटेरियल में वर्केबिलिटी होनी चाहिए ताकि मैं उस पर काम कर सकूं, उसका फिनिशिंग कर सकूं, कॉम्पैक्ट कर सकूं एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट, ऑब्वियसली द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। नाउ आपकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी रिक्वायर्स लो वाटर सीमेंट रेशियो। आपका वाटर सीमेंट रेशियो कम रहेगा, ठीक है। वाटर सीमेंट रेशियो की भी मैंने रेंज बताई हो आपको, दैट इज बिटवीन 26 to 33, ठीक है ना। दैट इज योर वाटर सीमेंट रेशियो। आपकी स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी वाटर सीमेंट रेशियो पे काफी मेंटेन करती है, काफी डिपेंड करती है। लेकिन वाटर सीमेंट रेशियो लो करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीमेंट का कंटेंट बढ़ा दोगे, क्योंकि सीमेंट का कंटेंट बढ़ा दोगे तो आपकी कॉस्ट पर अफेक्ट आ जाएगा, तो आपका मिक्स डिजाइन में तो एक फैक्टर नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। सो वाटर सीमेंट रेशियो लो करना है, दैट डज नॉट मीन कि आप डिनोमिनेटर दैट इज सीमेंट का कंटेंट बढ़ा दोगे। आप क्या करोगे, वाटर का कंटेंट थोड़ा सा लोअर कर दोगे। अब वाटर का कंटेंट लोअर करोगे तो वर्केबिलिटी भी मार खा सकती है, तो वाटर का कंटेंट आप एग्रीगेट को चेक करके कम ज्यादा करोगे। एग्रीगेट की ग्रेडिंग, कौन से एग्रीगेट यूज कर रहे हो, कैसे एग्रीगेट्स यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से आप वाटर का कंटेंट थोड़ा सा कम कर सकते हो। और अदरवाइज ऐसा नहीं होता है तो वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स होते हैं, यानी कि एडिशनल मटेरियल हम कंक्रीट मिक्स में डालते हैं जो आपके एज अ सप्लीमेंट वर्कआउट करता है कि अगर पानी कम है, वर्केबिलिटी कम मिल रही है, तो ये एडमिक्सचर वर्केबिलिटी बढ़ा देगा, ठीक है। सो ये एडमिक्सचर्स को हम यूज करते हैं अगर हमको लो वाटर सीमेंट रेशियो मेंटेन करना है और पानी कम नहीं कर सकते, सीमेंट कम नहीं कर सकते, तो फिर क्या किया जाता है, पानी को थोड़ा कम कर दिया जाता है और एडमिक्सचर को डाल दिया जाता है, ठीक है। ये सप्लीमेंट्स को डाल दिया जाता है ताकि आपको स्ट्रेंथ को हैम्पर ना हो, क्योंकि स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी आर द मेजर फैक्टर्स जो आपके मिक्स डिजाइन में या कैसे भी कंक्रीट में मिलनी चाहिए, जरूरी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। अब ये देखिए मैंने आपको एक स्लाइड दिखाया हूँ, कंक्रीट के ये ग्रेड्स हम मेंटेन करते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम M10 to M80। पहले तो M5 भी चलता था लेकिन अब M5 वगैरह कहीं यूज नहीं होता है। दैट इज ऑल स्टार्ट्स विद M10 and ends up to M80 and it has been categorized into three groups, that is ordinary concrete, standard concrete and high strength concrete. Ordinary concrete ranges between M10 to M20
इसको आपको डिजाइन नहीं करना पड़ता है, इसके लिए एक नॉमिनल मिक्स, फिक्स्ड मिक्स बना दिया गया है। सो फॉर M10 आपकी स्ट्रेंथ कितनी आनी चाहिए? द कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब एट 28 डेज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर शुड बी 10। ये जो 10 है, ये 10 रिप्रेजेंट करता है द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ अ क्यूब जिसका साइज है 150 बाय 150 बाय 150, जो क्योर्ड हुआ है फॉर 28 डेज, और उसकी वैल्यू निकली है 10 इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, 15 M15 कंक्रीट की 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, M20 के लिए 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सी स्टूडेंट, हम क्या बात कर रहे हैं? स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला लोड अपॉन एरिया, ठीक है। लोड इज कंसिडर्ड इन न्यूटन एंड एरिया इज कंसिडर्ड और टेकन इन mm स्क्वायर, ठीक है। तो स्ट्रेस मतलब स्ट्रेंथ, ताकत, ताकत इज स्ट्रेंथ एंड झेलना इज स्ट्रेस। जितनी मेरी ताकत है उतना ही मैं झेल सकता हूँ। अब मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ तो जितनी मेरी स्ट्रेंथ है उतना ही मैं स्ट्रेस ले सकता हूँ, ठीक है। सो स्ट्रेंथ मीन्स स्ट्रेस, स्ट्रेस is equal to load upon area, load in Newton, area in mm square, load upon area that means Newton per mm square। तो M20 की स्ट्रेंथ 10, M15 की 15, M20 की 20, सिमिलरली फॉर अदर्स। अब यहाँ देखिए आप M25 या तो M10 से हम पकड़े, M10 से M20 इनके लिए जो मिक्स रहता है दैट इज कॉल्ड एज अ नॉमिनल मिक्स। वो डिजाइन मिक्स नहीं होता है, दैट इज अ नॉमिनल मिक्स। सिंस ये जो M10 से M15 के कंक्रीट है ये एक नॉमिनल वर्क के लिए या ऑर्डिनरी वर्क के लिए यूज होते हैं, तो ऑर्डिनरी वर्क में उतना स्ट्रेस ये स्ट्रेंथ नहीं आता है कि आपको डिजाइन करना पड़े कंक्रीट को। तो इसलिए आईएस कोड ने इनके लिए एक फिक्स्ड मिक्स या नॉमिनल मिक्स प्रपोर्शन दे चुका है ऑलरेडी, ठीक है। उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। वेयर एज अबोव M20 यानी कि M25 से लेके जहां तक हम जा रहे हैं M80 तक, इनके लिए नॉमिनल मिक्सेस काम नहीं आएंगे, यानी कि एक फिक्स मिक्स काम नहीं आएगा। इसके लिए आपको मिक्स क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि आपको मिक्स डिजाइन करना पड़ेगा कि सीमेंट का प्रोपोर्शन कितना रखूं, सैंड का और एग्रीगेट का और वाटर का। सो दैट इज कॉल्ड एज अ कंक्रीट मिक्स डिजाइन। आपको M25 से लेके M80 तक के कंक्रीट के लिए कंक्रीट मिक्स डिजाइन करना पड़ेगा, ताकि आप इतनी एटलीस्ट मिनिमम इतनी आपकी स्ट्रेंथ अचीव कर सको फॉर एवरी ग्रेड्स। यहाँ देखिए M25 से M55 दे आर रेंजेस फॉर स्टैंडर्ड कंक्रीट ग्रुप, वेरेज M60 से M80 ये हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए बनाए जाते हैं। यानी कि आपको डैम बनाना है, रिटेनिंग वॉल्स बनानी है, तो आपको ये कंक्रीट के ग्रेड्स यूज करना पड़ेगा ताकि आपको इतनी इतनी स्ट्रेंथ मिल सके। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, यहाँ देखिए स्ट्रेंथ ही बता रही है कि कितनी बढ़ गई, 60, 65, 70, 75, 80, ठीक है। सो दैट इज अंडर द ग्रुप ऑफ हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब व्हाट इज M20, इसके ऊपर भी स्टूडेंट्स हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। M20 मतलब M refers फॉर मिक्स, मिक्स ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर। 20 क्या होता है? 20 मींस कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किसकी? एक 150 mm बाय 150 mm बाय 150 mm क्यूब की, कब? 28 डेज क्योर्ड करने के बाद। किसमें है? न्यूटन पर mm स्क्वायर में। अब इसमें हम पीसीसी वर्क अगर कर रहे हैं तो मिनिमम स्ट्रेंथ हमको 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिलनी चाहिए, और अगर आरसीसी वर्क कर रहे हैं तो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिलनी चाहिए। आई होप क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स आपको। M20 कंक्रीट, M रिफर्स फॉर मिक्स, 20 रिफर्स फॉर स्ट्रेंथ। पीसीसी वर्क के लिए उसकी स्ट्रेंथ एटलीस्ट 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर मिलनी चाहिए, वेरेज फॉर आरसीसी वर्क द स्ट्रेंथ शुड बी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ नॉमिनल कंक्रीट मिक्सेस एंड डिजाइन कंक्रीट मिक्सेस, इस पर बात करते हैं, जिसके ऊपर मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ। नॉमिनल कंक्रीट मिक्स M5 से M20 तक यहाँ पे बात करते हैं, और डिजाइन कंक्रीट मिक्स M25 से लेके M80 तक, जो आपको करना है।
और नॉमिनल कंक्रीट मिक्स एक फिक्स प्रोपोर्शन जिसके लिए गवर्नमेंट ने दे दी है, ठीक है। सो नॉमिनल कंक्रीट मिक्स, the wide use of concrete as construction material the wide use of concrete as construction material has led to the use of mix of fixed proportion has led to the use of mixes of fixed proportion which ensure adequate strength. यानी गवर्नमेंट ने for the nominal mix कंक्रीट का एक फिक्स प्रोपोर्शन दे दिया है, कंक्रीट मिक्स का एक फिक्स प्रोपोर्शन दे दिया है। Since they are used for the general concrete construction work, they offer simplicity and under normal circumstances अपनी वो मार्जिन ऑफ स्ट्रेंथ प्रॉपरली आपको देता है। सो नॉमिनल मिक्सेस मे बी यूज फॉर कंक्रीट ऑफ ग्रेड्स M5, 7.5, 10, 15, 20 जिसके ऊपर हमारी पहले भी बात हो चुकी है। तो इफ यू आर डिजाइनिंग अ कंक्रीट फॉर दिस सेड ग्रेड्स, government has directly given you the fixed proportion of mix which will ensure you the adequate strength as specified in this grades. Since they are a general work, so they offer a simplicity and normal condition में under normal condition extreme heat extreme cold की बात नहीं कर रहे हम, under normal condition they will provide you the exact और adequate margin of strength जैसा कि ये स्पेसिफाई करता है, Now let's move ahead over the proportion of ingredient of nominal mix. Proportion क्या maintain करते हैं of the nominal mix? अगर M5 की बात करें तो 1:5:10, यानी कि 1 part of cement, 5 part of fine aggregate and 10 part of coarse aggregate। कहने का मतलब 1 part cement, 5 पार्ट सैंड का, कोर्स एग्रीगेट 10 पार्ट्स। वाटर की बात है तो वाटर अकॉर्डिंग टू वाटर सीमेंट रेशियो, ठीक है। 7.5 के लिए 1:4:8, 10 के लिए 1:3:6, 15 के लिए 1:2:4 और 20 के लिए 1:1.5 और 3, यानी कि 1 पार्ट सीमेंट का और 1.5 पार्ट सैंड का और 3 गुना आप एग्रीगेट यूज करोगे। Now let's come to the design mix concrete. Design mix concrete. The concrete mix produced under quality control, जो concrete हम बना रहे हैं या concrete mix जो हम produce कर रहे हैं under quality control, keeping in view उसकी strength, durability, workability is called as design mix। यानी कि ऐसा concrete mix जो आप under quality control बना रहे हो, ध्यान में रख के उसकी स्ट्रेंथ को, जो उसकी आने वाली है, ड्यूरेबिलिटी जो मिलने वाली है, वर्केबिलिटी जो मिलने वाली है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिजाइन मिक्स। अदर फैक्टर्स लाइक आप कॉम्पैक्शन जो करोगे, कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट, क्यूरिंग जब करोगे, वो क्यूरिंग मेथड, टाइप ऑफ सीमेंट जो आप यूज कर रहे हो, क्वालिटी ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट जो यूज कर रहे हो, ये सब भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बिफोर अराइविंग एट द मिक्स प्रोपोर्शन। आप मिक्स प्रोपोर्शन जो ले रहे हो उसके पहले आपको ये सब सवाल भी ख्याल में रखना पड़ेगा कि मैं कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट कौन सा यूज करने वाला हूँ, क्यूरिंग मेथड्स कौन से यूज करने वाला हूँ, सीमेंट कौन सा, फाइन एग्रीगेट कौन सा, कोर्स एग्रीगेट कौन सा यूज करने वाला हूँ। सो दिस शुड ऑल बी कंसिडर्ड बिफोर अराइविंग एट द मिक्स प्रोपोर्शन। सो द डिजाइन मिक्स हम ऐसी जगह पे यूज करते हैं, डिजाइन मिक्स हम ऐसी जगह पे यूज करते हैं जो ज्यादातर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, ताकि उनकी स्ट्रेंथ हमको ज्यादा से ज्यादा अच्छी मिले, वेरिएबिलिटीज ना हो। ऐसा ना हो कि ये कंक्रीट की स्ट्रेंथ में वेरिएबिलिटी मिल रही हो हर एक सेक्शंस पर। लीनर मिक्स्ड जो आपको इकोनॉमी देगा उसके हिसाब से हम डिजाइन मिक्स बनाते हैं, एज वेल एज टू अश्योर द रिजल्टिंग क्वालिटी, उसके हिसाब से भी हम कंक्रीट मिक्स बनाते हैं। इन सब पर हमारी बात ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which mostly arrive in your university examination, that is factor affecting या factor influencing the choice of mixed design. Okay, mixed design
मिक्स डिजाइन करने के लिए आपको कुछ आईएस कोड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आईएस 456 2000, आईएस 4343 1980, आईएस 13920, इनका आपको यूज करना पड़ता है फॉर द डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स। नाउ वेरियस फैक्टर्स जो आईएस कोड बताता है, according to IES, the various factors that influence the choice of concrete mix are grade of concrete, ग्रेड क्या ले रहे हो उसके हिसाब से स्ट्रेंथ मिलेगी, टाइप ऑफ सीमेंट क्या ले रहे हो उसके हिसाब से आपको स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी मिलेगी, साइज ऑफ एग्रीगेट कितना ले रहे हो अगेन इसके हिसाब से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ग्रेडिंग ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट, आप ग्रेडिंग्स कैसे कर रहे हो, कौन से साइज के एग्रीगेट्स मिला रहे हो, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वाटर सीमेंट रेशियो तो आपको पता ही है, वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल, दीज आर द फैक्टर्स that majorly affect the mix design. Now how they affect, let's see. Now the very first the factor which influence the concrete mix or the design of concrete mix, that is the grade of concrete. आपको पता है grade of concrete आपको क्या देता है, characteristics compressive strength of a concrete, ये सबसे important factor है क्योंकि majorly हम importantly strength के लिए ही concrete को बनाया जाता है with a durability, along with a durability. So for example आपको पता है M20 denotes the characteristic compressive strength, that is FCK, FCK मतलब characteristic compressive strength of 20 Newton per mm square. So depending upon the degree of control available at site, आपको according to the degree of control, जो degree of control means क्या कहेंगे हम, the factors, the environmental factors that are available on site, उसके accordingly and the importance of work, उसके हिसाब से you will choose the grade of concrete, you will choose the grade of concrete depending upon the degree of control available at site and the environmental factors. The concrete mix is to be designed for the target mean compressive strength, यानी कि for the defined grade of concrete, applying suitable standard deviation, applying suitable standard deviation. Now what is the standard deviation, इसके ऊपर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। सेकेंड फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द कंक्रीट मिक्स डिजाइन इज टाइप ऑफ सीमेंट। देखिए टाइप ऑफ सीमेंट रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एज वेल। ग्रेड ऑफ कंक्रीट जैसे कि आपको बताता है कि ज्यादा ग्रेड कंक्रीट है तो ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, वैसे ही टाइप ऑफ सीमेंट 33 ग्रेड सीमेंट लोगे, 43 ग्रेड सीमेंट लोगे, 53 ग्रेड सीमेंट लोगे, तो तीनों के लिए स्ट्रेंथ अलग अलग है। नाउ जैसे कि आपको बता दिया गया है कि आप लीन मिक्सेस बनाते हो, दैट मीन्स एग्रीगेट सीमेंट रेशियो हायर रखते हो, यानी कि एग्रीगेट की वैल्यू ज्यादा रखते हो, सीमेंट की वैल्यू कम रखते हो। अब इससे स्ट्रेंथ पे भी तो फर्क पड़ेगा, अगर आपने सीमेंट कम ले लिया तो स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ेगा। तो इस केस में क्या किया जाता है, यू विल गो फॉर द हायर ग्रेड ऑफ सीमेंट। जैसे कि आप 43 ग्रेड सीमेंट लोगे तो आपको कम सीमेंट में उतनी स्ट्रेंथ अचीव हो जाएंगी एज कंपेयर टू 33 ग्रेड सीमेंट। वेरेज आप 53 ग्रेड सीमेंट लोगे तो और सीमेंट कम यूज करना पड़ेगा टू अचीव वो स्ट्रेंथ जो आप 43 ग्रेड सीमेंट से या 33 ग्रेड सीमेंट से अचीव करने वाले थे। आई होप आपको समझ गया हो कि आप अगर हायर ग्रेड्स पर जाओगे तो कम सीमेंट भी उतनी ताकत देगा, ठीक है। हायर द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट यूज्ड इन कंक्रीट, हायर द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट यूज्ड इन कंक्रीट मतलब हायर द ग्रेड ऑफ सीमेंट यूज्ड इन कंक्रीट, लेसर विल बी द सीमेंट कंटेंट। The use of 43 grade and 53 grade of cement gives saving in cement consumption as 15 to 25%। यानी कि आपको 33 ग्रेड सीमेंट की स्ट्रेंथ अचीव करना है तो आप 43 ग्रेड सीमेंट ले लो, 15% सीमेंट कम डालना पड़ेगा, या 53 ग्रेड सीमेंट ले लो, 25% सीमेंट कम डालना पड़ेगा एज कंपेयर टू 33 ग्रेड सीमेंट। सो फॉर द कंक्रीट ग्रेड ऑफ M25 ये एडवाइजेबल है कि आप 43 ग्रेड या 53 ग्रेड सीमेंट ले लो ताकि आपको सीमेंट कंटेंट कम लगे और आपको अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाए लीन मिक्स के साथ साथ, यानी इकोनॉमी भी मेंटेन हो। सो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ सीमेंट आप क्या यूज कर रहे हो, तो सॉरी ग्रेड ऑफ सीमेंट आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि हायर ग्रेड लोगे तो लीन मिक्स बन जाएगा, इफेक्टिव
मिक्स डिजाइन होगा। लेकिन 33 ग्रेड सीमेंट ही लोगे तो सीमेंट ज़्यादा लगेगा, एग्रीगेट सीमेंट रेशो ज़्यादा नहीं रख पाओगे, लीन मिक्स नहीं बना पाओगे, इकोनॉमी अफेक्ट करेंगी और मिक्स डिजाइन हैम्पर होगी। नेक्स्ट फैक्टर इज मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट। So the coarse aggregate is determined by sieve analysis. Now next factor that affects the or influence the concrete mix design are the maximum nominal size of the aggregate. Maximum nominal size of the aggregate. अगर हम coarse aggregate की बात करें, that is your गिट्टी, तो that is analyzed by sieve analysis. sieve analysis से पता चलता है हमको कौन से aggregates coarse aggregates है। When the aggregate is sieved through 4.75 mm sieve, the aggregate retained is called coarse aggregate. यानी 4.75 mm से बड़े जो aggregates होते हैं, those are called as a coarse aggregates. But आप अगर जो कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो, उस कंस्ट्रक्शन वर्क को देखकर आप कोर्स एग्रीगेट्स सिलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, आपने एक बीम बना रहे हो, तो बीम के 3 डायमेंशंस होते हैं, दैट इज आपका ब्रेथ, डेप्थ और आपकी लेंथ। ठीक है, या तो आप उसको थिकनेस, डेप्थ और लेंथ ऐसा कह सकते हो। सो द स्मॉलेस्ट डायमेंशन ऑफ योर बीम मेंबर इज द थिकनेस एंड द स्मॉलेस्ट डायमेंशन ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर इज योर थिकनेस ओनली। ठीक है, इज द थिकनेस ऑफ दैट मेंबर। सो द मैक्सिमम अलाउएबल size of the coarse aggregate should not be more than 1/4 of the minimum thickness, 1/4 of the minimum thickness of the member। यानी कि आपकी अगर 100 mm थिकनेस है बीम मेंबर की, तो 100 का 1/4 दैट इज 25 mm। तो 25 mm विल बी द मैक्सिमम साइज ऑफ योर कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, नाउ फॉर हेवीली रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर्स, अगर आप हेवीली रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर्स चूज कर रहे हो, जैसे कि आपका बीम जिसमें स्टीरप्स लगे होते हैं और मेन बार्स होते हैं, काफी कंजेस्टेड होता है वो, दैट इज कॉल्ड एज अ हेवीली रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर्स, द नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट should usually be restricted to some less than minimum clear distance between the main bars, some less than the minimum clear distance between the main bars। इसका क्या मतलब हो रहा है, 2 बार के बीच का जो डिस्टेंस है या उतना साइज होना चाहिए, या 5 mm लेस देन मिनिमम कवर टू द रेनफोर्समेंट, 5 mm लेस देन द मिनिमम कवर टू द रेनफोर्समेंट, whichever is smaller। क्या मतलब निकल रहा है, या तो आप क्लियर टू क्लियर डिस्टेंस लोगे 2 बार के बीच का, या मिनिमम कवर। क्या होता है कवर मतलब, लेट मी शो यू दैट। सो क्या कहा गया है कि आपको साइज कितना रखना है, एटलीस्ट नंबर 1 द क्लियर स्पेसिंग बिटवीन 2 बार्स। देखिए मैंने एक बीम बनाया, बीम में ये मेन बार्स है, ये मेन बार्स आगे चलते रहते हैं ऐसे, उनको कनेक्ट करता है ये स्टीरप्स। ठीक है, इसको कहते हैं स्टीरप्स, दीज आर मेन बार्स। जहाँ पे आपके बार्स खत्म होते हैं वहाँ से लेके एंड सरफेस तक क्लियर कवर होता है। यानी कि कंक्रीट यहाँ तक चलता है लेकिन स्टील अंदर होता है, स्टील को कवर के अंदर रखते हैं, यानी कि एक डिस्टेंस तक कवर्ड रखते हैं। ठीक है, ताकि वो एनवायरनमेंट के एक्सपोजर में ना आए और रस्टिंग और वेदर इफेक्ट्स उस पर ना हो। ठीक है, सो आपको क्या बोला गया है, कोर्स एग्रीगेट अगर पर्टिकुलर कोई सेक्शन के लिए यूज कर रहे हो तो इट शुड नॉट बी मोर देन 1/4 ऑफ द थिकनेस। अब इसमें थिकनेस क्या होगी, ये थिकनेस होगी, थिकनेस, डेप्थ एंड लेंथ। तो थिकनेस का 1/4 उतना लोगे। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और अगर हेविली रेनफोर्स मेंबर्स है, जैसे कि मेन बीम हो गया, तो नॉमिनल, सो इफ द रेनफोर्समेंट्स आर कंजेस्टेड, जैसे कि एक मेन बीम में होता है, यहाँ पे अगर कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट आते हैं और भी ज़्यादा मेन बार्स आते, तो ऐसे केस में हम 1/4 ऑफ द थिकनेस नहीं लेंगे, हम उसमें क्या करेंगे, दूसरा पैरामीटर यूज करेंगे, दैट इज आइदर क्लियर स्पेसिंग बिटवीन 2 बार्स, ये 2 बार्स के बीच की जो क्लियर टू क्लियर स्पेसिंग है, एज टू एज, दैट इज कॉल्ड एज क्लियर स्पेसिंग, इतना लोगे।
ठीक है, या तो फिर 5 mm लेस देन क्लियर कवर, 5 mm लेस देन क्लियर कवर, यानी जो क्लियर कवर आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये 50 आ रहा है तो 50 में से -5 45, ठीक है, विच एवर इज मिनिमम, इन दोनों में से जो भी मिनिमम रहेगा वो हम फाइनल कर लेंगे, ऐसा है। सो ये दूसरा पैरामीटर है जिस पर हम एग्रीगेट के साइज को लेते हैं। क्या कहा गया है, कोर्स एग्रीगेट डिटरमाइन कैसे होता है, सीव एनालिसिस से। 4.75 mm से ऊपर वाले जो एग्रीगेट्स होते हैं उनको हम कोर्स एग्रीगेट्स मानते हैं। फॉर नॉमिनल साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट आपका इट शुड नॉट बी मोर देन 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस, लेकिन हेविली कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट है तो मिनिमम आप कितना रखोगे, क्लियर कवर बिटवीन द मेन बार्स, और 5 mm लेस देन द मिनिमम कवर ऑफ रेनफोर्समेंट, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन मेन बार्स और 5 mm लेस देन मिनिमम कवर ऑफ द रेनफोर्समेंट। नाउ एक चीज देखिए, जितना ज्यादा साइज ऑफ एग्रीगेट रखोगे सरफेस एरिया कम कवर होगा, जितना छोटा साइज एग्रीगेट का रखोगे सरफेस एरिया ज्यादा कवर होगा। तो जितना मैक्सिमम साइज एग्रीगेट का लोगे लोअर विल बी द सरफेस एरिया ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड वाइस वर्सा। अब एज द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट रिड्यूसेस, यानी कि अगर आप मैक्सिमम साइज कोर्स एग्रीगेट का रिड्यूस करते हो तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। मैक्सिमम साइज अगर कोर्स एग्रीगेट का रिड्यूस करते हो यानी छोटे छोटे एग्रीगेट्स लेते हो तो सरफेस एरिया ऑफ द एग्रीगेट्स इंक्रीज हो जाएगा, और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा वाटर डिमांड बढ़ जाएगी, यानी वाटर उतना लगेगा और वर्केबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, स्मॉलर मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट वुड रिक्वायर ग्रेटर फाइन एग्रीगेट्स, यानी स्मॉलर मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट मतलब that would require greater fine aggregate. To coat particle and maintain cohesiveness of the concrete mix. देखिए क्या होता है, आप अगर मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट को छोटा करते हो अगर, तो आपको मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट को गिट्टी के मैक्सिमम साइज को अगर छोटा करते हो तो रेती के साइज को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ताकि कोटिंग प्रॉपरली हो और कोहेसिवनेस मेंटेन हो। क्या करते हो आप, एग्रीगेट के साइज को अगर छोटा करते हो तो रेत के साइज को आपको थोड़ा बड़ा करना पड़ता है इन ऑर्डर टू मेंटेन द कोहेसिवनेस ऑफ द कंक्रीट मिक्स। आपको क्या करना पड़ता है, अगर मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट अगर स्मॉलर ले रहे हो, छोटा ले रहे हो, गिट्टी का मैक्सिमम साइज आपका छोटा है, एट दैट टाइम आपको फाइन एग्रीगेट का कंटेंट बढ़ाना पड़ता है। यहाँ देखिए आप ख्याल देंगे क्या बोल रहा है, स्मॉलर मैक्सिमम साइज ऑफ अ कोर्स एग्रीगेट, अगर मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट इज स्मॉलर तो फाइन एग्रीगेट का कंटेंट ज्यादा रहना चाहिए ताकि कोहेसिवनेस मेंटेन्ड हो कोहेसिवनेस। ठीक है, अब देखिए कोहेसिवनेस मेंटेन हो रही है मतलब वर्केबिलिटी मेंटेन हो रही है। सो फॉर द सेम वर्केबिलिटी 40 mm aggregate would have lower water cement ratio. 40 mm aggregate क्योंकि बड़ा एग्रीगेट है, साइज बड़ा है, तो उस पर सरफेस एरिया कम लगेगा, तो सरफेस एरिया कम तो पानी कम लगेगा, तो 40 mm एग्रीगेट यानी बड़ा साइज का एग्रीगेट उसको पानी कम लगेगा, दैट इज उसका वाटर सीमेंट रेशियो लो हो जाएगा, और वाटर सीमेंट रेशियो कम हुआ मतलब हायर स्ट्रेंथ हो जाएगी, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी व्हेन कंपेयर टू 20 mm एग्रीगेट, बिकॉज 20 mm एग्रीगेट का सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा कंपेयर टू 40 mm एग्रीगेट। ठीक है, तो इसमें पानी ज्यादा लगेगा 20 mm एग्रीगेट में, और 40 mm एग्रीगेट में पानी कम लगेगा। पानी कम लग रहा है मतलब लोअर वाटर सीमेंट रेशियो, एंड वाटर सीमेंट रेशियो लो मतलब हायर स्ट्रेंथ। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ द लो वाटर सीमेंट रेशियो या लो वाटर डिमांड आप मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट का एडवांटेज उठा सकते हो।
क्योंकि आप बड़े साइज का एग्रीगेट लोगे, पानी कम लगेगा, और पानी कम लगेगा तो आप सीमेंट के कंजम्पशन को भी कम कर सकते हो। अगर सीमेंट के कंजम्पशन को कम कर दिया तो एग्रीगेट सीमेंट रेशो बढ़ जाएगा और लीन मिक्स बन जाएगा और इकोनॉमी मेंटेन हो जाएगी, जिसके ऊपर हमारी बात हो चुकी है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज ग्रेडिंग ऑफ कंबाइन एग्रीगेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द ग्रेडिंग ऑफ कंबाइन एग्रीगेट। देखिए, ग्रेडिंग्स बहुत ज़रूरी है बिटवीन द कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट्स। ठीक है, अगर आपको कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट्स को आप प्रॉपरली ग्रेड नहीं करते हो, यानी बड़े छोटे एग्रीगेट्स पूरे नहीं लेते हो, तो क्या होगा, बड़े बड़े एग्रीगेट्स साथ साथ में रहेंगे और वॉइड्स क्रिएट होंगे। तो क्या है, बड़े और छोटे सभी साइज के एग्रीगेट्स, देयर शुड बी अ रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट्स इन अ कॉन्क्रीट मिक्स। ठीक है, it is very essential that fine and coarse aggregate must be graded well। अगर ऐसा रहता है कि एग्रीगेट जो अवेलेबल है फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स वो कंफर्म नहीं करते स्पेसिफाइड ग्रेडिंग को, या एक ही कोई ग्रेडिंग के रहते हैं, देन आपको खुद से 2 और मोर ग्रेड्स के एग्रीगेट्स उसमें मिलाकर उसको यूनिफॉर्मली वेल ग्रेडेड करवाना पड़ेगा। सो दैट इज द मेजर थिंग, ग्रेडिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स एंड फाइन एग्रीगेट्स। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर इज द मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो। आप सबको पता है आपको मैक्सिमम यानी वाटर सीमेंट रेशियो लो रखना है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द लो वाटर सीमेंट रेशियो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो भी पता है। या तो आपको हाई ग्रेड ऑफ सीमेंट लेना पड़ेगा तो सीमेंट कम लगेगा, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ जाएगा। साइज ऑफ एग्रीगेट्स बड़े लेना पड़ेगा तो सरफेस एरिया कम कवर होगा, वाटर कम लगेगा, तो वाटर सीमेंट रेशियो कम हो जाएगा। ठीक है, एंड लोअर द वाटर सीमेंट रेशियो मोर इज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। नेक्स्ट फैक्टर इज वर्केबिलिटी। आपको वर्केबिलिटी भी अच्छी चाहिए, क्योंकि वर्केबिलिटी अच्छी नहीं रहेगी तो कंक्रीट प्रॉपरली मिक्स नहीं हो पाएगा, प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट प्लेस या कॉम्पैक्ट नहीं हो पाएगा, सेग्रीगेशंस हो जाएगी। सो वर्केबिलिटी इज ऑल्सो मेजर फैक्टर दैट मस्ट बी कीप इन माइंड in order to prepare in order to design a concrete mix। okay, now the durability भी और स्ट्रेंथ दोनों लो वाटर सीमेंट रेशियो पर डिपेंड करती है। लो वाटर सीमेंट रेशियो करने के लिए आपको it is usually not achieved by increasing the cement content but by lowering the water demand। आप लो वाटर सीमेंट रेशियो कैसे अचीव करते हो, नॉट बाय इंक्रीजिंग द सीमेंट कंटेंट। आप सीमेंट कंटेंट बढ़ा दो और लो वाटर सीमेंट रेशियो क्रिएट करो, वैसा करके नहीं। यूजली इसको कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, बाय लोअरिंग द वाटर डिमांड। ठीक है, बाय लोअरिंग द वाटर डिमांड, एंड वाटर डिमांड कैन बी लोवर्ड थ्रू कंट्रोल ऑफ एग्रीगेट ग्रेडिंग एंड बाय यूजिंग वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर्स। देखिए, दो चीज करी जाती है, या वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर यूज कर लो, पानी का लेवल कम करना पड़ेगा, यानी ज्यादा पानी नहीं मिलाना पड़ेगा, प्रोपोर्शन ऑफ वाटर कम हो जाएगा, और एग्रीगेट का साइज बढ़ा दो। ठीक है ना, एग्रीगेट बड़े साइज के ले लो तो वाटर डिमांड कम हो जाएगी। दिस इज हाउ यू कैन रिड्यूस द वाटर सीमेंट रेशियो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स व्हिच यूजुअली अफेक्ट्स द मिक्स डिजाइन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करना है आपके यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग or next topic, that is method of concrete mix design। Some of the commonly used mix design methods are IS method यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड मेथड, अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट मेथड, रोड नोट 4 मेथड। वैसे IRC, आर्बिट्ररी, इतने सारे मेथड्स का आपको काम नहीं है, वैसे इतने नाम आपको याद भी नहीं करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स विच यू आर गोइंग टू वर्क ओवर आर, दिस इज इंडियन रोड कांग्रेस मेथड। ओके, the most important method which you are going to work over on is IS method and road note 4 method। okay, now let's come to the first method, that is IS method of mix design। so according to Bureau of Indian Standard, they have recommended a set of procedure for the design of concrete mix। they have directly given us the procedure for the design of concrete mix। the procedure is based on the research work carried out by the national laboratories। national laboratory में काफ़ी सारे researchers ने research work करके एक procedure बनाया है which require the data for mix design। the following basic data are required to be specified for a design of concrete mix। very first thing, characteristics compressive strength। सेकेंड थिंग, दैट इज डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी जो आपको चाहिए।
Third, limitation of water cement ratio with the minimum cement to ensure adequate durability. ठीक है, ये पॉइंट भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, ये भी एक स्पेसिफिकेशन है. टाइप एंड मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, ये भी आपको पता होना चाहिए. दीज आर द डेटा. कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना रखना है, वर्केबिलिटी कितनी मेंटेन करना है, वाटर सीमेंट रेशियो कितना मेंटेन करना है, साइज एंड टाइप ऑफ एग्रीगेट क्या लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना मेंटेन करना है. दीज आर द थिंग्स व्हिच यू आर रिक्वायर्ड टू बी टेक इनटू कंसिडरेशन. So I am showing you this, the procedure adopted as per IS method of mixed design. The method as per IS 10262 1982 can be applied to both medium and high strength concrete. Procedures. The design stipulation are to be decided and these are given below. पहले तो आपको डिजाइन डेटा डिसाइड करना पड़ेगा और वो ऐसा है कि नंबर ए या पॉइंट ए, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड ऑन द फील्ड एट 28 डेज. आपको एफसी के कितना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज में, दैट इज एफसी के कितना चाहिए आपको, वो आपका पहला डिजायर्ड स्टिपुलेशन है. सेकंड डिजायर्ड स्टिपुलेशन इज मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कितना रख रहे हो. यूजुअली आप कितना रखना चाहिए आपको, आई थिंक 20 mm इज द बेस्ट साइज ऑफ एग्रीगेट विच इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन फॉर योर नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वर्क, नॉर्मल मीडियम कंस्ट्रक्शन वर्क्स, एंड इट शुड बी एंगुलर इन शेप. ठीक है. डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी कितनी मेंटेन करना है. सो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, देखिए वर्केबिलिटी कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट पे हमारी बात हो चुकी है. कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट कि ये टेबल था, आप लोगों ने ये रीड कर चुका है पहले भी, कि डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी अगर वेरी लो है तो स्लम्प कितना रहता है 0 to 25 फ्रॉम द टॉप, और इसकी कॉम्पैक्शन फैक्टर इतना रहता है. लो है तो इतना, मीडियम है तो इतना, कॉम्पैक्शन फैक्टर इतना, हाई के लिए इतना. ठीक है. सो वी आर कंसिडरिंग द कॉम्पैक्शन फैक्टर ऑफ लो, यानी डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी कितनी ले रहे हैं हम, लो टू मीडियम ले सकते हो आप. एकदम हाई वर्केबिलिटी नहीं चाहिए आपको, बिकॉज आप मीडियम एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हो, हाई वर्केबिलिटी की जरूरत नहीं है. आप नॉर्मल कंडीशंस ले रहे हो तो नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से वर्केबिलिटी शुड बी बिटवीन लो टू मीडियम, तो 0.9 हम कंसिडर कर रहे हैं. ऐसा आप सिमिलरली इस तरीके से आप प्रोसीजर दिखाओगे. डिग्री ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल हम गुड रख रहे हैं, हम मान रहे हैं कि क्वालिटी कंट्रोल जो है एट द सराउंडिंग ड्यूरिंग द टेस्टिंग्स और वाइल परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन द क्वालिटी कंट्रोल इज गुड. टाइप ऑफ एक्सपोजर हमने देखिए माइल्ड लिया है, इसलिए हमने जो हमारी वर्केबिलिटी है मीडियम टू लो के बीच में लिया है. ठीक है. टेस्ट डेटा आर टू बी कलेक्टेड एंड इज गिवन बिलो. टेस्ट डेटा, टाइप ऑफ सीमेंट क्या ले रहे हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी सीमेंट लेंगे आप, आपको हाई सीमेंट हाई ग्रेड सीमेंट्स की जरूरत नहीं है. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट्स, ये आपको पता होना चाहिए. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट. ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा आगे आपको, लेकिन दिस इज द इंपॉर्टेंट डेटा विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर डिजाइन प्रोसीजर. थर्ड, वाटर एब्जॉर्प्शन एंड सरफेस मॉइस्चर ऑफ एग्रीगेट या फ्री मॉइस्चर ऑफ एग्रीगेट, ये भी आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज सीव एनालिसिस ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट. सीव एनालिसिस होना चाहिए कि आप कोर्स एग्रीगेट ले रहे हो तो साइज कितना है, फाइन एग्रीगेट ले रहे हो तो साइज कितना है. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टारगेट मीन स्ट्रेंथ. टारगेट मीन स्ट्रेंथ, या इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो आपको चाहिए रहती है ऑफ एनी कंक्रीट, दैट इज डिटरमाइंड बाय FCK plus T into S, where FCK is equal to that, this is capital FCK, that is equal to your target compressive strength. आपको कितनी चाहिए, and FCK is characteristic compressive strength at 28 days. यानी कि एक कोई आप ग्रेड ले रहे हो, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, फॉर एग्जांपल आप M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट ले रहे हो, तो फॉर 28 डेज उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बता दिया गया 20 न्यूटन पर mm². लेकिन फॉर योर डिजाइन प्रोसेस आपकी एक्चुअल कितनी बनने वाली है ये नहीं पता, तो आप टारगेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल रहे हो और एवरेज कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको पता है. T इज अ स्टैटिस्टिक डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन ऑफ लो रिजल्ट एंड नंबर ऑफ टेस्ट. ये स्टैटिस्टिक्स है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है. एंड S इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन. सो स्टैटिस्टिकल वैल्यू T, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सेप्टेबल प्रोपोर्शन ऑफ लो रिजल्ट एंड द नंबर ऑफ टेस्ट. एक्सेप्टेबल प्रोपोर्शन ऑफ लो रिजल्ट्स, कितना एक्सेप्टेड प्रोपोर्शन है लो रिजल्ट का.
ठीक है, और टेस्ट के ऊपर लो रिजल्ट के एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शन है 5%। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 एंड IS 1343/1980 द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज डिफाइन एज, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मतलब ये FCK, आप FCK के लिए काम करते हो ना, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ आएंगी बेस्ड ऑन द करंट सिनेरियो, बेस्ड ऑन द प्रेजेंट और द क्या बोलेंगे लाइव सिनेरियो। ओके, so characteristic strength plus based on the live scenario you will get the target strength for mixed design। ठीक है, the characteristic strength is defined as the value below which not more than 5% of test result are expected to fall। so characteristic strength ये है कि उसके बिलो हार्डली 5% टेस्ट रिजल्ट्स फॉलो होंगे। ठीक है ना, देर आर चांसेस कि टेस्ट रिजल्ट्स कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ से कम हो, आप 100 टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, फॉर M20 ग्रेड कॉन्क्रीट, सो इट इज एक्सपेक्टेड अप टू 5% प्रपोर्शन कि आपका टेस्ट रिजल्ट्स M20 के लिए 20 से कम रहेगा। ठीक है, सो T is the statistical value which depends upon the accepted proportion of low result which is a 5% and the number of test, okay, for which the value comes out to be is 1.65, the value of T comes out to be 1.65। अब देखिए ये आपको वैसे तो काम का है नहीं, बट सिंपली आपको मैं बड़े शॉर्ट में समझा देता हूँ। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, it shows number of tests that has taken place and the test results for the number of tests। ठीक है, we are considering that 5% of test results has fallen below the desired strength। okay, so for 5% test result the value of T comes over the curve। okay, so the value of T was found out to be 1.65। अब आपको इसके in depth पढ़ाई नहीं करना है because it is not of any knowledge to you। so simply मैं आपको ये ग्राफ दिखा दे रहा हूँ कि probable density function showing number of test results and number of tests for which we have considered that 5% of test result has fallen, 5% of test results has fallen and the value of T is coming out to be 1.65। okay, so बस इसको आपको ध्यान रखना है कि T की वैल्यू 1.65 है। कहाँ से आई? प्रोबेबल डेंसिटी फंक्शन से। प्रोबेबल डेंसिटी फंक्शन के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि वो कैसा क्या रहता है, कैसे बनता है, बिकॉज दैट इज एन अनदर टॉपिक विच इज कम्प्लीटली इररिलेवेंट टू दिस। ओके, नाउ T की वैल्यू तो मिल गई आपको, बचा S। S इज योर स्टैंडर्ड डिवीजन। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन इज ऑब्टेन फ्रॉम द टेबल। देखो IS मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन ने आपको ऑलरेडी एक टेबल दे चुका है फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, IS 456 का एक क्लिप है ये जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू दिख रही है फॉर वेरियस ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट्स। सो अगर आप M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट ले रहे हो सो द वैल्यू विल बी फॉर डिफरेंट डिग्री ऑफ कंट्रोल, वेरी गुड डिग्री ऑफ कंट्रोल, गुड डिग्री ऑफ कंट्रोल और फेयर डिग्री ऑफ कंट्रोल। तो आप अगर गुड डिग्री ऑफ कंट्रोल ले रहे हो तो M20 के लिए S की वैल्यू है 4.6। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो आपने अभी तक क्या कर लिया? व्हाट इज योर IS मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन? आपने उसमें समझा है कि हमको डेटा पहले कंसिडर करना पड़ेगा, विच आर द फॉलोइंग डेटाज, वो आपने कंसिडर कर लिया। ठीक है, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर FCK या टारगेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, वो आपको पता है। T की वैल्यू, T क्या है, स्टैटिस्टिकल वैल्यू कितनी रहती है वो पता है। S स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं ये पता है आपको। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड स्टेप, दैट इज सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। फॉर डिफरेंट सीमेंट aggregate of different maximum sizes and their gradings, the surface texture, shape and other characteristics may produce concrete of different compressive strength। देखिए आपकी कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आप कौन से टाइप का सीमेंट यूज कर रहे हो, एग्रीगेट का साइज क्या ले रहे हो, आप एग्रीगेट का साइज क्या ले रहे हो, एग्रीगेट की ग्रेडिंग कैसे कर रहे हो, उनका सरफेस टेक्सचर या शेप उनका कैसा है, इन सब चीज़ों पे आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू डिपेंड करती है। तो हर जगह पर आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ योर कंक्रीट वैरी करते हुए मिलेगी फॉर द सेम वाटर सीमेंट रेशियो। हालांकि आप वाटर सीमेंट रेशियो सेम रख रहे हो तो भी, ठीक है।
इसीलिए the relationship between strength and water cement ratio should preferably be established for the material actually to be used. जो मटेरियल आप यूज करोगे उसके लिए आपको स्ट्रेंथ और वाटर सीमेंट रेशियो का कर्व प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच डेटा डायरेक्टली आईएस कोड ने एक आपको कर्व बनाकर दिया हुआ है, आप सिंपली इस कर्व को रेफर करके वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। compressive strength and water cement ratio. For the compressive strength of 20 water cement ratio कितना मेंटेन करना है, 0.58 बता दिया है, ठीक है। For the compressive strength 30 water cement ratio 0.46 या 0.47 आपको अडॉप्ट करना है, ये बता दिया गया है। तो आपको क्लियर हो रहा है आई थिंक। तो वाटर सीमेंट रेशियो, compressive strength and water cement ratio का relationship is very much important for determining the water cement ratio, and if आपके पास actual site data available है कि सीमेंट भाई कैसा है, एग्रीगेट कैसा है, सरफेस टेक्सचर कैसा है, तो वाटर सीमेंट रेशियो और रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेंथ एंड वाटर सीमेंट रेशियो आप बना सकते हो, निकाल सकते हो, ताकि आगे भी आपको काम करना पड़े तो वो साइट डेटा इनफ रहे और उससे आप आगे के लिए डायरेक्टली वैल्यूज निकाल सको। बट आईएस कोड ने डायरेक्टली आपको चार्ट दे दिए कि भाई ये चार्ट यूज करो एंड यू कैन डायरेक्टली डू द कैलकुलेशंस इन द एंटायर इंडिया फॉर योर डिजायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फॉर योर डिजायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जितनी भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लो उसके लिए आप डिजाइन कर सकते हो, वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ से पिक हो जाएगा। However, उसके अलावा भी बताया गया है कि अगर आपके पास सीमेंट की स्ट्रेंथ पता है तो सीमेंट की स्ट्रेंथ से भी आप द प्रिलिमिनरी फ्री वाटर सीमेंट रेशियो corresponding to the average strength of concrete determine कर सकते हो। The relationship between free water cement ratio and corresponding compressive strength of concrete, ये आप with the help of strength of cement भी आप ये रिलेशन को डेवलप कर सकते हो और वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो। आई होप ये समझ में आया आपको कि कंक्रीट की कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ आपकी 30 है, ठीक है, एंड आपकी एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इनमें से जिस भी रेंज में है तो उस रेंज पर चले जाओ, यू विल गेट द वाटर सीमेंट रेशियो। दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द वाटर सीमेंट रेशियो। पहला मेथड कैसा है, डायरेक्टली देयर इज अ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड अ वाटर सीमेंट रेशियो, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आपकी उसके अगेंस्ट में आपको वाटर सीमेंट रेशियो मिल जाता है। लेकिन इफ यू आर हैविंग द एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट आफ्टर द 28 days of setting, then for the corresponding compressive strength and with the help of the average strength of a cement, you will get the water cement ratio. This is the second method.